Good morning, student of class 3. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to continue the chapter number 4. Okay, chapter number 4, the internet and introduction. Okay, chapter number 4, the internet and introduction. And this is the syllabus for second term examination. Chapter number 4, the internet and introduction. Chapter number 5, fun with MS Paint. Chapter number 6, file management and organization of folders. Okay, so these three chapters are included in the second term examination. Okay, एंड आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो चैप्टर है, 3 चैप्टर है, इसको बुक पे मार्क कर लेना होगा। ओके, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ये सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर है। ओके, and this is the content of this chapter. In my previous video I already have discussed about internet. Okay, and today I am going to discuss uh, internet service provider, www, web browser, web page, website, home page and search engine. Okay, so all these contents I am going to discuss in this video. Now let's start the discussion. Okay, so first is internet service provider. Internet service provider means ISP. Okay, ISP means internet service provider, जो हम लोगों को क्या करता है कि नेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ओके, डू यू नो हाउ इलेक्ट्रिसिटी रीच आवर होम? वेल, there are various service provider like NTPC Limited, Tata Power Company, NHPC Limited, okay, which supplies the electricity to our house. Similarly, in order to connect the internet, we need a connection from an ISP, Internet Service Provider. ISP is a company that provides internet access to the user. Okay, ISP ISP is a company. Okay, ISP is a company that provides इंटरनेट एक्सेस टू दी यूज़र। दैट मीन्स जो आईएसपी होता है वो क्या होता है, एक कंपनी होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो भी इन कंपनियों से आता है। ओके, हम लोगों के घर पे सेम चीज़ इंटरनेट भी हम लोगों को किसी ना किसी कंपनी के ज़रिए ही हम लोगों को घर पे लेना है। ओके, तो वो आईएसपी क्या करता है कि हम लोग तो यूज़र हैं। ओके, हम लोगों को एक्सेस देता है इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। ओके, एंड some popular ISPs are BSNL. Okay, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड. Okay, BSNL means भारत संचार निगम लिमिटेड. Next is MTNL. MTNL means महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड. Next is Airtel Hathway. Okay, so these are the example of internet service provider. Okay, some few more example are Jio, Vodafone, Airtel, etc. Okay, these companies provide hardware devices. Okay, this company provides hardware devices such as modem or router to connect our computer to the internet. Okay, so mainly ISP is a company that provides internet. Okay, so an example of ISP is BSNL. Okay, BSNL means Bharat Sanchar Nigam Limited. Okay, BSNL, MTNL, Airtel Hathway, Jio, Airtel, Vodafone, etc. These all are example of internet service provider. Okay, next is www. We all know that www means World Wide Web. Okay, World Wide Web is a collection of pages containing text, pictures, audios and movies available on the internet. Okay, these page are connected using links. World Wide Web is popularly known as web or web 3. Okay, so www क्या होता है? www होता है कि बहुत सारा इंटरनेट का जो वेब पेज होता है उसको, उसका जो कलेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, www बोलते हैं। ओके, और जो पेजेस है, वेब पेजेस है, वो क्या होता है कि बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट रहता है उसमें। जैसे कि हो गया इमेज, हो गया ऑडियो, हो गया वीडियो, हो गया मूवीज, हो गया एक्सेट्रा। ओके, और www वर्ल्ड वाइड वेब इज पॉपुलरली known as web or w3. Okay, next is web browser. Web browser is a software. Okay, web browser is a software that allows us to access the page of on the world wide web. Okay, so हम लोग जब भी कोई भी कभी भी इंटरनेट का यूज़ करना चाहेंगे तो हम लोग को एक सॉफ्टवेयर ज़रूरत होगा। ओके, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? वेब ब्राउज़र होगा। वेब ब्राउज़र इज ए सॉफ्टवेयर। ओके, और वेब ब्राउज़र से हम लोग क्या कर सकते हैं? We use the web browser to access the
web pages from the internet. Okay, some example of web browser are Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Okay, here you can see the image of a Google Chrome. Okay, next is Internet Explorer, next is Mozilla Firefox. Okay, all these three are example of a web. Next is web page. The web pages, the pages that makes up world wide web are known as web pages. Okay, जो वेब पेज होता है वो क्या होता है कि बहुत सारा वेब पेज मिलके www दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब को क्रिएट किया जाता है. ओके, दी पेजेस दैट में कंटेंट टेक्स्ट इमेजेस ऑडियोज वीडियोस एंड लिंक्स. ओके, मैंने पहले ही बोला है कि एक वेब पेज के अंदर बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट रहता है, लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियोस हो गया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स हो गया. ओके, web pages are connected using a language called HTML. HTML means hypertext markup language. Okay, this is very important. HTML means hypertext markup language. जो वेब पेज क्रिएट होता है वो किस लैंग्वेज पे क्रिएट होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से ही वो वेब पेज क्रिएट होता है. ओके, एंड ए वेब ब्राउजर इज यूज टू वेब पेजेस. जो हम लोग वेब पेज को हम लोग एक्सेस करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज websites. So a website is a collection of related web pages linked to one another. Just like every house is locality has a different address, similarly every website has different address using which we can open it. Okay, so that means website क्या होता है? वेबसाइट होता है कलेक्शन होता है. ओके, जैसे कि मान लिया अगर हम लोगों का स्कूल का कोई वेबसाइट होगा तो उसमें खाली हम लोगों के स्कूल के बारे में ही जितना भी सारा पेज होगा वो स्कूल के बारे में ही होगा. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं. ओके, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. ओके, लिंक टू वन एंड अनदर. ओके, the address is called the uniform resource locator. Okay, the address is the is called uniform resource locator or URL of the website. और URL क्या होता है? URL होता है एक एड्रेस होता है. जैसे कि मान लिया हम लोग के अलग अलग एड्रेस होता है, किसी का भी घर का एड्रेस सेम नहीं होता, उसी तरह से हर एक वेबसाइट का एड्रेस अलग अलग होता है. ओके, इसीलिए उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाता है. ओके, एंड सम ऑफ URL वेबसाइट्स आर www mathsfun.com, next is kids.nationalgeography.com, nasa.gov, wikipedia.gov. All these are here you can see all these website are different from each other. Okay, यहाँ पे जितना भी सारा वेबसाइट लिखा हुआ है सब अलग अलग वेबसाइट्स हैं. ओके, कोई भी वेबसाइट किसी से भी मैच नहीं करता. ओके, इसीलिए ये हर एक वेबसाइट यूनिक होता है. ओके, नेक्स्ट इज होम पेज. सो द फर्स्ट पेज ऑफ द होम पेज. ओके, जब भी हम कोई भी अगर ओपन करेंगे, कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे, जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज बोलते हैं. ओके, होम पेज गेट डिस्प्लेड first when the website is open using a browser. The home page contains links to the other web pages or websites. जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो फर्स्ट पेज होगा, ओके, जो फर्स्ट पेज होगा वेबसाइट का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? होम पेज बोलेंगे. ओके, और होम पेज के अंदर क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्स रहते हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पियर्सन का वेबसाइट है. ओके, और यहाँ पे देखिए स्कूल, हायर एजुकेशन, असेसमेंट सर्टिफिकेशन. ओके, सो यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दिया है? लिंक दिया गया है, हम लोग दूसरे जगह पे विजिट कर सके, दूसरे पेज पे जा सके. ओके, नेक्स्ट इज सर्च इंजन. सो सर्च इंजन, okay, one of the important advantages of using advantages of internet is that it allows us to access any information easily from anywhere and anytime. Large amount of information is available on the internet. It is not possible for us to remember the address of the all website that contains information on a given topic. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं? जब भी हम लोगों को तो सबको वेबसाइट का एड्रेस जो होता है वो तो हमेशा याद नहीं रहता. ओके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, लाइक गूगल. ओके, अगर हम लोग को कोई भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी हम लोग को कोई भी कंटेंट चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गूगल हो गया
सर्च बार, जैसे कि बिंग हो गया, याहू हो गया, वहाँ पे सर्च बार में जाके हम लोगों को जो चाहिए, जो क्वेश्चन होगा हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। ओके, ए सर्च इंजन इज ए वेबसाइट दैट सर्च वेरियस वेब पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब फॉर ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। ओके, जो सर्च इंजन तब क्या करेगा कि हम लोगों ने जो इनपुट दिया है, ओके, उसी को ढूंढेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट में, वो इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, उसके बाद हम लोग को क्या करेगा, सजेशन देगा। ओके, उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी वेबसाइट के अंदर जाके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and the example of search engines is Google, Bing and Yahoo. Okay, next is opening a web page using a browser. Okay, opening a web page using a, so we are already know that a web browser is required to open a web page. Okay, हम लोगों को पता है कि हम लोग अगर कोई भी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग को एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होगा, और वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है। ओके, let us open the website of National Geographic Kids on the Google Chrome browser. So all of you have to follow some steps. Okay, first steps is type the Google Chrome in search box next to the start button to open it. The Google Chrome windows open up. Okay, आप लोग यहाँ पे पता होगा ये विंडोज का आइकॉन है, और ये जो है सर्च बार है, कंप्यूटर के अंदर जो सर्च बार रहता है वो ये है। ओके, उसके अंदर क्या लिखना होगा, गूगल क्रोम लिखना होगा। ओके, गूगल क्रोम लिखने के बाद यहाँ पे सर्च लिस्ट आएगा, वहाँ से आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल क्रोम है। ओके, जब भी आप लोग यहाँ पे सर्च बार में लिखेंगे गूगल क्रोम, कोई भी अगर हम लोग लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया या फाइल कोई हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो सब यहाँ पे शो होता है। ओके, लाइक सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने गूगल क्रोम लिखा है, और जो गूगल क्रोम एप्लीकेशन है, वो ब्राउज़र एप्लीकेशन है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हम लोगों को इसको क्लिक करके ओपन करना है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट kids.nationalgeography.com in the address bar of the Google Chrome window and press the enter. The website opens up in the browser window. दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना होगा, किड्स नेशनल जियोग्राफी जो है उसको, ये जो वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसको क्या करना होगा, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र का जो एड्रेस वहाँ पे लिखना होगा। सो एड्रेस बार कौन सा होता है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो एड्रेस बार है, ये जो है यहाँ पे लिखा है www.google.com, यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा, ये जो है ब्राउज़र का एड्रेस बार होता है। ओके, यहाँ पे आप लोगों को लिखने के बाद इंटर प्रेस करना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज यूजिंग द सर्च इंजन। ओके, सर्च इंजन यूज़ करके हम लोग कैसे कोई भी पेज को ओपन कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। टाइप द यूआरएल ऑफ एनी search engine in the address bar of the browser window and then press enter. For example, open Google home page, type www.google.com। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो एड्रेस बार है www.google.com लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोगों को एंटर प्रेस करना होगा। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो पेज है, ये जो पेज है, ये गूगल का होम पेज है। ओके, गूगल का जो होम पेज है वो ये पेज है, और ये ऑटोमेटिकली जब आप लोग लिखेंगे www.google.com तब ओपन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है, व्हेन द गूगल क्रोम होम पेज गेट्स डिस्प्ले, टाइप द टॉपिक ऑन व्हिच द इंफॉर्मेशन इज टू बी सर्च इन द सर्च बॉक्स। आप लोगों को क्या करना होगा, जो सर्च बॉक्स है, ये वाला जो सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप लोगों को जो जिस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए उसको लिखना होगा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो हम लोग को जिस टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम लोगों को यहाँ पे ये सर्च बॉक्स जो है इसके ऊपर लिखना होगा। एज वी टाइप ए लिस्ट ऑफ आइटम मैचिंग आवर सर्च टॉपिक गेट डिस्प्ले, प्रेस एंटर व्हेन डन। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च हम लोगों के सामने आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, उसी में से हम लोगों को चूज करना होगा। ओके, द सर्च रिजल्ट आर डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ लिंक्स ऑन द टू द पेज इन व्हिच यू सर्च ऑन द टॉपिक फाउंड, वी कैन क्लिक ऑन द लिंक टू विजिट द वेब पेजेस। ओके, यहाँ पे बहुत सारा लिंक होगा, अगर हम लोगों ने इसको ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम लोग ऑटोमेटिकली जान पाएंगे। ओके, सो
this is the way to search an web page by using a search engine. Okay, so हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग सर्च इंजन के जरिए हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. बट आप लोग क्या करना होगा कि बुक अच्छी तरह से पढ़ना होगा. ओके, बुक अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आप लोग ऑटोमेटिकली कोई भी टॉपिक अच्छी तरह से समझ पाओगे. ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.